السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم و معزز و مکرم قابل عزت سامعین و ناظرین و حاضرین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی توصیفات، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی بڑیائی، اس کی حمد و ثنا، جس کے فضل و توفیق سے ہم اور آپ ایمان کی حالت میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس کائنات اور دنیا کی سب سے انمول اور قیمتی شے ایمان، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے نوازا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم پر امید ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان اپنی زندگی میں حقیقت میں اگر کسی چیز کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے تو ہے ماہ مبارک ماہ رمضان۔ یہ شایان شان ہے ایک مومن کی کہ اسے ہمیشہ رمضان کے انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے گزشتہ رمضان میں اور آپ کو عطا کیا وہ پر امید، اور ہم لوگ بھی پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آئندہ رمضان جو چند دنوں کے بعد، چند ایام کے بعد آنے والا ہے، نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ رمضان المبارک یہ فرائض میں سے ہے، فرض ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں رمضان کا روزہ بھی ہے۔ یہ فرض روزے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ فرض نماز ہے، 5 وقتہ نماز جو فرض کی گئی ہے، اسی طریقے سے رمضان کا روزہ بھی مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں سے اللہ نے کہا۔ یہ نقطہ آپ یاد رکھیں کہ قرآن جب مخاطب کرتا ہے تو کئی انداز سے کرتا ہے۔ کہیں پر یا ایھا الناس کہا گیا، اے لوگوں، تو ناس میں لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں عوام الناس، یعنی لوگوں میں عام بھی ہو سکتے ہیں، خاص بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اس لیے کہا کہ روزہ ایمان والے کے اوپر ہی فرض ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں، مومن نہیں ہیں، ان کے اوپر روزہ نہیں فرض ہے، گرچہ وہ روزہ رکھتے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ خاص کر ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ہم کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، بہت سارے پورا بھی روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری سوسائٹی کے ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو 5 2 4 رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ روزہ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ فائدہ پہنچانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک دلیل اور اشارہ ہے کہ ہمیں جو ماہ مبارک ملا، ہم سے پہلے بھی امتوں کے اندر روزہ کا کنسیپٹ تھا۔ کوئی روزہ کا معاملہ نیا نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اس سے پہلے بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی اصل مقصد ہے رمضان کے روزوں کا، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور اس کو انشاءاللہ پھر بیچ میں اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی سلسلہ وار طریقے سے ساری باتیں بیان کی جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بتانا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے،
اور رمضان کی فضائل اور اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا. آپ یہ سمجھیں کہ طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. دو شخص آئے اور انہوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ہے نا. دو لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور یہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں، مسلمان ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس میں سے آگے چل کر، اور دوسرا آدمی اس کی 1 سال بعد مرا. جو پہلا آدمی انتقال کیا وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. دونوں بیک وقت ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے. ایک جہاد میں گیا، کسی غزوے میں گیا ہوگا، وعد میں، خندق میں، خیبر میں، اس کی وضاحت نہیں، شہید ہو گیا بہرحال. دوسرا آدمی اس شہادت جس نے پائی اس کے 1 سال بعد انتقال کر کے نارمل موت مرا. وہ خواب میں طلحہ بن عبید اللہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی نارمل موت مرا وہ جنت میں پہلے چلا گیا اور جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا. جب صبح بیدار ہوئے تو انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ کہاں شہادت کی موت اور کہاں ایک عام موت ہے نا. اللہ کے راستے میں اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی کیوں مارے گئے، اسلام کی طرف سے، دین کی طرف سے، اور ایک آدمی نارمل موت مرا. صحابہ کو تذکرہ کیے طلحہ بن عبید اللہ. صحابہ کو تعجب کے ظاہر تم نے کیا دیکھ لیا بھائی خواب میں؟ ہونا تو یہ چاہیے، عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو شہید ہو وہ پہلے جنت میں جائے گا، لیکن آپ خواب میں دیکھ رہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا. تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات میں تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا صحابہ کو تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتے تھے. اور طلحہ بن عبید اللہ نے ساری بات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے، مسلمان ہوئے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ایک شہادت کی موت مارے اور دوسرا 1 سال کے بعد انتقال کر گئے. لیکن یہ بڑا عجیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو عام موت مرنے والا آدمی یہ جو ہے یہ جنت میں پہلے چلا گیا اور جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا. مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیں اس کے بارے میں وضاحت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو آدمی بعد میں انتقال کیا، نارمل موت مرا، وہ 1 سال زندہ رہا اور اس 1 سال میں کو رمضان کا مہینہ مل گیا. 1 سال میں پہلے جو انتقال کیا شہادت کی موت مرے، ان کے بعد دوسرا آدمی 1 سال زندہ رہا اور 1 سال میں انہیں رمضان کا مہینہ مل گیا. رمضان کا مہینہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے رمضان کی بھرپور عبادت کی، ہے نا، اہتمام کیا روزوں کا، نوافل کا، سنن کا، تلاوت کا، اذکار کا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کی برکت کی وجہ سے اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا، اور جو شہادت کی موت مرے ان کو بعد میں داخل کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ ان دونوں کے جنت میں جو فاصلے ہیں ان دونوں کے درمیان وہ اتنا ہی جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اتنے فاصلے پر جنت کے اندر میں ہے وہ لوگ کہ جنہیں رمضان ملا وہ سمجھ جائے کہ آسمان کے اوپر ہے، اور جنہیں نارمل موت جو شہادت کی موت مرے وہ سمجھے کہ زمین پر ہے. اتنا فاصلہ ہے جنت کے اندر دونوں میں. یہ ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، کتنا عظیم، کتنا بابرکت رمضان مبارک کا مہینہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسانی فطرت ہونے کے ناطے ہم گھبراتے ہیں روزوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں کھانے کی عادت ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ سے پہلے ہلکا سا چائے پانی، پھر اس کے بعد ناشتہ، پھر بیچ میں کچھ نہ کچھ، پھر کھانا، پھر دوپہر میں چائے وغیرہ، پھر رات کا ہے نا شام کو ناشتہ، رات کا کھانا. تو یہ چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. یعنی سحر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں. اور انسان کے مزاج میں خوشگوار مزاج اسی وقت ہوتا ہے انسان کا مزاج جب انسان کھاتے پیتے رہتا ہے تو اس کا مزاج صحیح رہتا ہے. لیکن بالکل شروع صبح سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل کھانے پینے سے رک جانا تو ایک تو کمزوری کی بھی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزے میں یہ چیزیں کیا کھا پی نہیں سکتے تو کہیں جا بھی نہیں سکتے، ایکٹیویٹی میں بھی بہت اثر پڑتا ہے. تو بعض مسلمان بھائی ہیں جو اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ رمضان تو ٹھیک ہے، ہاں جہاں تک افطار کی بات ہوتا ہے مسلمان خوش رہتے ہیں، کھانے پینے میں ایک سے ایک پکوان بنتا ہے، اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دے کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے.
इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अच्छा मत खाइए, आप बात को समझने की कोशिश करें। हम आते हैं असलाफ की तरफ, सलफ सालेहीन की तरफ, जिसमें सहाबा भी है, ताबीन भी है, उनके बाद के अदवार है। सलफ सालेहीन रमजान का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, करीब करीब 6 महीना पहले तो खुश हो जाते थे क्या अच्छा आज कितनी तारीख की उर्दू की, आज से ठीक 6 महीने के बाद रमजान आने वाला है। सोचे कितना इंतजार करते थे सलफ सालेहीन। अल्लामा इब्न कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह, जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो रमजान में दर्स और तदरीस भी छोड़ देते थे और कुरान को सीने से लगा लेते थे, दिन रात कुरान पढ़ते थे। कहते थे कि ये महीना जो है कुरान का महीना है, शहर रमजान लजी उनजिला फील कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। वो सारी चीजों से ब्रेक ले लेते थे कि नहीं, हमें सिर्फ इस महीने की इबादत करनी है, और खूब दिल लगी से कुरान पढ़ते थे, उसका मुताला करते, उसके तर्जुमा तफसीर को पढ़ते, बड़ी मोहब्बत करते उस महीने में। खासकर ये रमजान की बात हो रही है, सलफ सालेहीन का यही तरीका था। पहली बात ये कि रमजान की आमद की बड़ी बेसब्री से इंतजार करते, और जब रमजान उनको मिल जाता तो बड़ी पुरजोशी से और बड़ी दिल्लगी से वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में जुट जाते। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि रमजान की आमद से पहले हम तैयारी करें। अभी माध्यमिक के इम्तिहान खत्म हुआ या खत्म होने वाला है, तो क्या सारे बच्चे भी इम्तिहान में बैठ के कोई पढ़ा नहीं? कोई बच्चा 3 महीने से पढ़ रहा है, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, कोई साल भर से पढ़ रहा है, एक साल से तैयारी कर रहा है कि नहीं बहुत सख्त इम्तिहान होता है, इसमें अच्छे नंबरात लाने, इम्तियाजी नंबरात लाने। क्यों तैयारी कर रहा है? क्योंकि उसको पता है माध्यमिक की अहमियत को पता है। इसी तरीके से हम मोमिन को भी पता होना चाहिए रमजान की अहमियत। हम इबादत करेंगे तो हमें पता है, लेकिन एक पॉजिटिव इंसान और जिम्मेदार इंसान अपने आप को बगैर रूटीन के लेके नहीं चलता। उसकी जिंदगी में रूटीन बहुत मायने रखती है। कब खाना है आम दिनों की भी बात है और रमजान की भी बात है। कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सब उसकी रूटीन में शामिल है। तो चूंकि आम दिनों के मुकाबले में रमजान का जो टाइम टेबल है बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो अब हम क्या रूटीन बनाए कि कैसे रमजान गुजारना है, कब क्या करना है। एक रूटीन जिसको तैयारी कहते हैं ये होनी चाहिए। इतना मुबारक महीना आने वाला है और सारे काम भी घर के करने हैं। ऐसा बात नहीं कि जो बाजार हम आम दिनों में करते थे रमजान में नहीं करने हैं। ऐसा तैयारी भी नहीं करना है कि बच्चों को भूखे ही मार देना है कि नहीं सिर्फ पढ़ना ही है, नमाज है, कुरान नहीं, वो भी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन रूटीन तो बनाना होगा ना कि कैसे वो सारे काम कर लें कि हमको रमजान में इधर उधर ना जाने के बजाय ज्यादातर हमको इबादत में मेरा वक्त गुजर सके। ये बात याद रखें। तो सबसे पहले हमें रमजान की तैयारी करनी है। जैसे शादी ब्याह घर में पड़ता है तैयारी करते हैं, कैसे करना है उसी तरीके से रमजान बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। हदीस से समझ में आ रहा होगा और आपको कि शहीद होने वाला आदमी बाद में जन्नत में गया, और नॉर्मल आदमी जिसको रमजान मिल गया था तो पहले जन्नत में चला गया। तो सबसे पहले हम तैयारी करें रमजान की कि रमजान को कैसे गुजारना है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं रमजान की तैयारी के सिलसिले में जिन्होंने रमजान की खरीदारी पहले ही कर लिया। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली जिनका रूटीन हर साल का है। वो रमजान में बाल बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े, बीबी के कपड़े, मामा के कपड़े वो शाबान में खरीद लेते हैं और अपने बाल बच्चों को एकदम कमर कस देते हैं कि आप लोग लग जाइए इबादत में। ये टेंशन ही निकाल दीजिए कि कपड़ा लेने जाना है, गंजी बच गया, लुंगी बच गया, ये बच गया, वो लाना है। चांद रात तक दौड़ रहे हैं कपड़े के पीछे, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत और सीरत रही है कि आप ईद उल फित्र के लिए जाते बड़े पाक साफ होकर, नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। लेकिन इसका ये माना हरगिज नहीं कि अच्छा का मतलब ये है कि 2 हफ्ता पूरा खरीदारी में लगा दे, यानी रमजान के महीने को तहस नहस कर दे, अपने ईमान को बर्बाद कर ले, इस कीमती वक्त को बर्बाद कर ले। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो आपको अब तक खरीदारी कर चुके हैं। अरे नया कपड़ा ही पहनना है, ईद के दिन नया कपड़ा पहनना है, ईद से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रमजान है। ये तो बात वाली चीज है, बात वाली चीज है। तो ये मेरी दरखास्त और रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से जो लोग भी ऑनलाइन है कि रमजान के महीने को खरीदारी का महीना ना बनाएं। आमतौर पर हम लोग अपने माशरे में ऐसा ही चीज देखते हैं कि बाजार दिन रात खुले रह रहे हैं और दिन रात मुसलमान मस्जिद से ज्यादा बाजार में नजर आ रहे हैं। दिन रात ऐसा नहीं कि रमजान में 5 वक्त नमाज पढ़ ली, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, एक पारा पढ़ लिया, बहुत बड़े काम, आउटस्टैंडिंग काम हो गया। ये सब तरावी तो पढ़ ही रहे हैं, रोजा तो रख ही रहे हैं, सहरी तो खा ही रहे हैं, क्या मुल्लैल हो ही रहा है, सदका तो कर ही रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आप समझिए कि तैयारी का मतलब ये है कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी क्या कर सकते हैं हम। आप अपने आप को ये ना कहे
कि हम बहुत इबादत कर रहे हैं, ये एहसास दिला कि हम बहुत कम कर रहे हैं, तो ठीक हम इबादत में लग जाएंगे। ये जहां हमारे जहन में आएगा तो काफी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, जतवन भी कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को बचाएंगे। ये भी देखा जाता है हमारे मुआशरे के अंदर कि ठीक इफ्तार से पहले दोस्तों का जमावड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि इफ्तार से पहले का जो टाइम है ये हमें हाफ टाइम मिला है, कुछ आप कर लीजिए जो करना चाहते हैं आम दिनों में, और उसमें भी लोग हंसी मजाक इधर उधर की बातें, फजूल बातों से सबसे पहले बचना रमजान में। रोजे की हालत में हमें फजूल बातों से बचना, बेकार की बात से तो बिल्कुल नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, एक महीना क्या कुछ काम है, कोई आया अस्सलाम वालेकुम भाई कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, भला खजूर की दुकान कहाँ है बता दें, वहां पे ये चीज का है, वहां पे बस बेकार की बात से परहेज करें, इससे रोजे पर असर पड़ता है, रोजे पर इससे असर पड़ता है। तो सबसे पहले रमजान के इस्तेकबाल के लिए हमें उसका रूटीन बनाना होगा। क्या रूटीन है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, बहुत अहम और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पर्सनली इसको महसूस करता हूं कि जो हमारे नौनहाल छोटे बच्चे हैं, करीब 8+ बच्चों को जो बात रहा है, 8 साल से ऊपर है या 8 साल के हैं, ये अक्सर पाया जाता है कि स्कूल की वजह से उनको रोजा नहीं रखा जाता है। अब कौन रखने नहीं देते, गार्जियन, कि नहीं 7 बजे से लेकर या 8 से लेकर 12 तक का स्कूल है, उसमें होमवर्क है, उसमें ट्यूशन भी है। आप मेरे भाई अंदाजा लगाइए कि दुनिया हासिल करने के लिए आप रमजान को कुर्बान कर रहे हैं। सोचिए, दुनिया हासिल करने के लिए इतना मुबारक महीना, और कहा जाता है कि बाद में जब बड़ा होगा तो रख लेगा, कौन जानता है वो कल जिंदा रहेगा, किसको पता है। ऐसे ख्वाब और इस तरह के सपने बहुत से लोग देखकर आज कब्र में चले गए, ये सोचकर कि इस साल जब रमजान आएगा 2025 का तो इंशाल्लाह भरपूर इबादत करेंगे, पिछले साल छूट गया था, आज वो कब्र में है कि नहीं। तो जो माँ बाप कह रहे कि हमारा बच्चा थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा तो रहेगा, उस माँ बाप को किसने जब खबर दे दी। अल्लाह हम सबको लंबी हयात दे, ये तो हम लोग दुआ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह जानते किसी कितनी हयात है, ये तो हम दुआ कर रहे हैं। और बच्चों को रोजा नहीं रखने दिया जाता, समझे, ये भी एक बहुत बड़ी खामी है जिस पर हम सब गार्जियन को गौर करने की जरूरत है कि कैसे हम लोग इस पर ध्यान दें। एक गार्जियन से जो हमारे मदरसे में जो बच्चे आते हैं, एक गार्जियन से हमारी बात हुई कि आप क्यों नहीं रोजा रखने देती, छोटा बच्चा है, कोई दिक्कत है, हमको भी मालूम 5 साल का नहीं रख पाएगा, आप शहरी में उठाइए तो पहले शहरी का प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ उठना है। उठाने के बाद खिला पिला के, जैसे आप लोग खा पी लेते उनको भी खिला पिला दीजिए, दांत वगैरह साफ कर दीजिए, देखिए कब तक भूखा रह सकता है। 5 बजे या 4 बजे शहरी खाया, 8 बजे तक रह गया, 4 घंटा हुआ ना, 4 घंटा बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हुई कि नहीं। नेक्स्ट डे जो है उसको 4.5 घंटा हो जाएगा, फिर 5 घंटा। असल उसको शौक दिलाना, उसके अंदर शौक खुद से कमी हो जाती है ना। तो उस गार्जियन का कॉल था कि बच्चे उठ जाते फिर सोते नहीं, फिर हम लोग का नींद पूरा नहीं हो पाता, हम लोग सुबह से काम करना पड़ता है। ये तमाम परेशानियों को उठाने का नाम तो ईमान है। इतनी आसानी से हमें जन्नत मिल जाएगी, इतनी आसानी से तो नौकरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की, जितना आसानी हम सोच रहे हैं। उसके लिए आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा, बहुत खटना पड़ेगा, उसमें आप नुमाया नंबरात लाएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी। आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी तो जन्नत कैसे मिल जाएगी। अब सोचे, तो गार्जियन कहते हैं कि नहीं बच्चा अगर उठ जाएगा तो सोता नहीं जल्दी, तो हकीकत है बच्चे जब उठ जाएंगे तो नहीं सोएंगे, सोने में टाइम लगेगा। आप ये देखिए कि बच्चे हमारे जहन्नम में ना जाए, उसके लिए क्या सोच कर रखिए आप। तो बच्चों को जानबूझ कर सुला दिया जाता, उठाया ही नहीं जाता शहरी के अंदर। लेकिन हम लोग उलमाए, हम लोग कोशिश हमेशा आखिरी दिन तक करनी है, उसका फायदा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मदरसे के बहुत से बच्चे पिछले साल 22-23 जो कभी 2-3 रखा करते थे, पिछले साल 22-23 तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पहुंच गए, आपको पुश करना होगा, आपको याद दिलाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। और हम यहाँ तक भी कहते हैं कि एक जिम्मेदार गार्जियन 1 महीने स्कूल अब्सेंट करवा दे, भाई हमारे बच्चे 1 महीने, हाँ अगर इम्तिहान है वो एक अलग मसला है, स्कूल अब्सेंट कर दे। क्यों, क्योंकि इतना मुबारक महीना फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम में से कोई नहीं जानेगा। ये भी एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है कि हमने बच्चों के जहन में डाल दिया है। यही वजह है कि यही सब बच्चे जब बड़े हो रहे तो रोजा नहीं रख रहे, वो 10th क्लास में चले गए, नहीं रख रहे, आदत ही नहीं, उनको भारी पड़ जा रहा है, एक ही रोजा रखने में उनकी हालत खराब हो जा रही है। हम लोग माँ बाप कैसे रखा है, बचपन से प्रैक्टिस करवाए। अल्लाह ताला हम लोग माँ बाप के जो हयात से लंबी हयात दे, और जो इंतकाल करके अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, मफरत करा दे। ये उन लोगों की मेहनतें हैं कि जिसका रिजल्ट हमारा आप है। तो मेरे भाई समझे कि जो अल्लाह ने औलाद दिया है उसको नेक बनाना है। ये मुबारक मेहनत अल्लाह देने वाला है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। इसमें अपने बच्चों को तैयार करना है। 4 घंटा बच्चे भूखे रहे, 5 घंटा रहे,
ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है। उठाएं, सहरी खिलाएं, सहरी के आदाब बतलाएं, फजर की नमाज पढ़ाएं। आप उठाते नहीं है ये सोच कर कि सहरी में उठ जाएगा तो क्या है, सोने नहीं देगा। अच्छा, फजर की नमाज कहाँ गई? तो आप सोचे फजर की नमाज कहाँ गई, ये किसने माफ कर दी? तो साल भर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिसीन और यतीम थे। अक्सर मुहद्दिसीन यतीम थे, इमाम मालिक भी यतीम थे, इमाम शाफी भी यतीम थे। उनके वालिद बचपन में इंतकाल कर गए थे। इमाम अहमद बिन हम्बल की वालिदा ठंडी के मौसम में इराक के अंदर, बसरा के अंदर उठती थी, पानी आग पर गर्म करती थी, उनको वजू बनवाती थी, और इतने छोटे बच्चे थे और ले जाकर मस्जिद छोड़ती थी, और वो बाहर खड़ी रहती थी जब तक फर्ज नमाज खड़ी खत्म ना हो जाए। वो नमाज पढ़ के निकलती तो उनको लेकर घर जाती। आज हमारे गार्जियन को स्कूल छोड़ने का टाइम है, लेकिन किसी भी गार्जियन को फिक्र है कि हमारा बच्चा फजर नहीं पढ़ा? किसी को भी हमने खुद से अमेंडमेंट कर दिया दीन के अंदर, नहीं भी पढ़ सकते। सोचे कब्र में क्या होगा, सोचे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जब नाम आता है तो हम लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस जिन्होंने मुस्नद अहमद किताब लिखी, इमाम बुखारी के उस्ताद थे। बचपन में उनकी मां मस्जिद ले जाकर छोड़ती थी, जाओ फजर की नमाज पढ़ो। ये नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, हम और आप कौन होते हैं इसको सुबह पढ़ने वाले? तो यहाँ तो रोजे में कोई नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कि रोजा भी छोड़ दो और नमाज भी छोड़, एक साथ दो गुना, सोच लीजिए। तो तैयारी सबसे पहले हमें रमजान की करनी है। जो शादीशुदा है अपनी बीवी से डिस्कस करे कि बच्चों को कैसे तरबियत करेंगे, उनको रोजा रखवाना है, छोटे हैं 5 घंटा रखवाना है, दोपहर तक जोहर तक रखवाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। उठाना है आपको, आपकी परेशानियों की हम लोग मिलकर हल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे, जब यही बच्चे जिंदा होंगे और कल हम कब्र के अंदर चल जाएंगे, जब ये दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारे मकाम को बढ़ाएगा जिंदगी में। तो मेहनत आज करेंगे तो रिजल्ट कल आखिरत में मिलेगा। ये रमजान की तैयारी का मसला है। उसके बाद हम आते हैं रमजान का हुक्म क्या है। सबसे पहली बात जानते हैं कि रोजा क्या है, मतलब जैसे कि सुन्नत है कि नफिल है कि मुस्तहब है कि क्या है, वाजिब है कि फर्ज है, ये समझना है। रमजान का हुक्म पहले समझना है। तो अभी मैंने बयान किया कि रमजान के बारे में आयत नाज़िल हुई सूरह बकरा आयत नंबर 183 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। तो रमजान का रोजा फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर। अब ये सवाल है कि कब से फर्ज होगा? 8 साल का बच्चा है कि 9 साल के बच्चे के ऊपर कोई साल कैद नहीं है। आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो बच्चा जब से रख ले, जिसके अंदर ताकत जब से हो जाए रखने की, फर्ज होगा उसके ऊपर कि उसको कोई परेशानी नहीं है। इबादत का मतलब ये नहीं कि अपनी जान दे देंगे। अब एक 6 साल का बच्चा, उसकी ताकत नहीं और 44 45 टेम्परेचर है, उसमें कैसे उसको रखवा दें, जान पे खिलवा दें? ऐसे नहीं। अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम रखने के काबिल हो गए कि नहीं। ये ऑटोमेटिक है कि आपकी ताकत इस्तात पैदा हो जाएगी, चाहे 8 साल से हो जाए, चाहे 9 साल से हो जाए, चाहे 10 साल से, चाहे उससे ऊपर जब से हो जाए। तो रमजान का रोजा फर्ज किया गया है। फर्ज के बाद फर्ज का हुक्म ये होता है कि रखने पर, करने पर सवाब है, ना करने पर गुनाह है। जैसे फर्ज नमाज 5 वक्त की पढ़ने पड़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह हो जाएगा। सोचिए, ऐसा नहीं है कि नफिल नहीं है। जैसे तरावी की नमाज नफिल नमाज है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। नफिल नमाज है, आम दिनों में इसी को तहज्जुद कहते हैं, इसी को क़यामुल लैल भी कहते हैं। अभी आम दिन है, वही तरावी की नमाज क़यामुल लैल है, और रमजान में तरावी के नाम से हम लोग और आप जानते हैं। लेकिन सवाब बहुत है। हदीस में ना, मन कामा रमजान ईमान व एहतिसाबन, जो कोई रमजान के अंदर क़याम करेगा ईमान और एहतिसाब की नियत से, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो पिछले उसके सारे गुनाह अल्लाह जो सगीरा गुनाह माफ कर देगा। सिर्फ पाबंदी से 1 महीना तरावी पढ़ने की वजह से अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन जब बात हुक्म की आएगी तो ये नफिल नमाज है, तरावी की जो नमाज है, पढ़ने पर सवाब है, ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर तरावी हम नहीं पढ़ते तो गुनहगार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रमजान का जो रोजा है ये फर्ज है, पढ़ने पर सवाब है, ना पढ़ने पर गुनाह है। लेकिन कुछ कुछ हालात में इसमें जो है थोड़ा सा आपको सहूलत दी गई है। जैसे अगर कोई मरीज है, अल्लाह ने कहा कि उमन काना मरीजन, अगर तुम में से कोई मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर की हालत में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, आयत नंबर 185 के अंदर सूरह बकरा 185। अगर कोई आदमी तवाना है, तंदुरुस्त है, लेकिन 2 चीजों का शिकार है, एक मर्ज का, मर्ज में भी बड़ा मर्ज। अब जैसे बुखार खांसी का मामला है तो इसमें हम शहरी में दवा खा लेंगे, दिन वाला खाना इफ्तार में दवा खा लेंगे, और अगर रात में रात वाला खुराक खा लेंगे।
हाँ, ज्यादा बीमारी, कमजोरी है, लाइक है, लागर है, तो हम ऐसी सूरत में मरीज की हालत में आ जाते हैं। तो मरीज है तो रोजा छोड़ दें, लेकिन काउंट करें कि कितना रोजा छूट रहा है हमसे। और अला सफरिन, या सफर की हालत में हो। ये अलग बात है कि आजकल का सफर पहले के सफर के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। मान लीजिए यहाँ से हम ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं एसी कोच में, तो रोजा आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि एसी में रह रहे हैं आप। प्लेन से जा रहे हैं 2 घंटे में पहुंच गए यहाँ से दिल्ली, लेकिन फिर भी आपको छूट है। क्यों? क्योंकि सफर में सिर्फ ये चीज की मुशक्कत नहीं होती, सफर में जान का खतरा भी होता है। टेम्पररी अल्लाह ना करे कोई दुर्घटना हो गया, आपके साथ कुछ बदतमीजी होने लगी, कुछ शरपसंद अनासिर आपको डिस्टर्ब करने लगे, बहुत तरह की परेशानी है। और सबसे बड़ी बात कि सफर में शैतान आपके पीछे लग जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपको छोड़ दिया है कि मर्ज और सफर की हालत में आपको इख्तियार है। आपका सफर कितना भी एयर कंडीशन क्यों ना हो, आप रोजा छोड़ दीजिए। जब आपको सहूलत मिली है, सहूलत का फायदा उठाइए, है ना। उस सूरत में आप रोजा नहीं रखेंगे। हाँ, कितना रोजा छूट रहा है उसको काउंट कीजिएगा, बाद में उसको पूरा करना है ना, इसको बाद में पूरा करना है। उसी तरीके से रोजा में जो छूट है औरतों के लिए भी है। औरत भी अगर मरीज है या सफर में है, और एक चीज और खास उनके साथ जुड़ जाती है, वो है पीरियड के वक्त में। अगर औरत माह रमजान में पीरियड से हो, हैज से हो, तो वो रोजा नहीं रखेगी। मिसाल के तौर पे एक औरत रोजा रख रही है, सहरी भी खा रही, और ठीक इफ्तार से 5 मिनट पहले पीरियड आ गया, तो रोजा उनका फासिक हो गया, वो रोजा नहीं दिलाएगा। ये नहीं कह सकते कि एंड वक्त पर, एंडिंग में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है दिला जी नहीं, 1 मिनट पहले अगर हो गए तो नहीं दिलाएगा रोजा। आपको रोजा ऑटोमेटिक टूट गया, तोड़ने की जरूरत नहीं, टूट चुका है, वो आप कितना भी कह दो, आप रोजा काउंट में नहीं आएगा। उसके बाद जब तक आप पीरियड से रहेंगी, हैज से रहेंगी, तब तक आप रोजा से फारिग रहेंगी, और नमाज भी नहीं पढ़ेंगी। नमाज भी नहीं पढ़ना है, रोजा भी नहीं रखना है। हाँ, रमजान के बाद आप रोजों की कजा करेंगे, नमाज की कजा नहीं करेंगे। याद रखें, ठीक है, कि इसमें क्या सहूलत अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। यहाँ आगे अल्लाह ने भी कहा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। अभी आप कहते हैं, एक सवाल होगा कि इमाम साहब अभी तो सफर बहुत आसान हो गया है, प्लेन से चले जाएंगे दिल्ली अगर जाना है तो क्या सुबह 7 में निकलेंगे, 8 बजे प्लेन बैठेंगे, 10 बजे उतर जाएंगे, और वहां से भी हम एयर कंडीशन लाइफ ही रहेंगे। तो अल्लाह कह रहा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तंगी नहीं चाहता। तो अल्लाह ने कह दिया कि आसानी के लिए कहा गया, तो फिर हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। समझ गया ना, हम क्या करें, सफर की हालत में फायदा उठाए जो शरीयत ने हुक्म दिया है। ये चीजें क्या है, रमजान के ताल्लुक से है कि रमजान का क्या हुक्म है, ये फर्ज है। अब एक सवाल आता है कि हम रमजान कैसे गुजारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैंने शुरू में तमहीद में कह दिया कि रूटीन बनाए। रूटीन बहुत जरूरी है। रूटीन से आप काम करेंगे तो आपके काम में दिल भी लगेगा, मन भी लगेगा, और एक जिम्मेदारी भी समझ में आएगी कि जिम्मेदारी है। और विदाउट रूटीन कोई काम करेंगे तो मन के ऊपर होकर करे करे ना करे, दोनों चीजें हो जाती है। क्योंकि हम लोग जिस मुआशरे में जिंदगी जीते हैं, हम लोग का मुआशरा इधर उधर की चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। हमारे पास बहुत वक्त है दूसरों की जिंदगी में झांकने के लिए, दूसरों के मामला में उंगली और टांग लड़ाने के लिए बहुत वक्त है। बजाय इसके कि हम उन औकात का सही तौर पर इस्तेमाल करें अल्लाह के जिक्र अस्कार या इबादत के लिए, हम इधर उधर की चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब इतना माह मुबारक, इतना मुबारक महीना मिल रहा है, सवाल यह है कि इस महीने को गुजारे कैसे हो, इसकी क्या मामला है। देखिए, मर्दों के ताल्लुक से है और औरतों के मामला है। मर्द भी एक जिम्मेदार होता है जो शादीशुदा होता है, उसको भी नौकरी करना है, कमाना है, नहीं कमाएगा तो खाए देखिए, है ना। औरत का भी काम दिन भर वाला काम है, रोजा भी रखना है, घर के सारे काम भी करने, पोछा भी लगाना है, घर भी झाड़ना है, कपड़ा भी खींचना है, बच्चों को भी देखना है, इफ्तार सहरी भी बनाना है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मर्द ज्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं, औरत के पास कोई मुश्किल नहीं है। अपनी जगह पर दोनों बराबर, अपनी जिम्मेदारी में दोनों बराबर है, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और वो दोनों अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे, तभी तो काम हो रहा है ना, तभी तो काम हो रहा है, एक घर आराम से चल रहा है। अब ऐसी सूरत में आम दिनों के मुकाबले में रमजान का रूटीन बिल्कुल चेंज रहता है। तो अब ऐसे में वो कौन सा हम कदम उठाए कि हम दोनों आपस में मियां बीवी आपस में समझौते के साथ, सहूलत के साथ, आसानी के साथ मिलजुल कर ये महीना आसानी से गुजारे। कैसे? हर चीज इसके अंदर है। हर इंसान की अपनी लाइफ है और अपनी जिंदगी, अपनी परेशानी और अपने मामला है, सबके अलग अलग है, कोई सबको का एक जैसा नहीं है। तो जब तक हम बैठ कर मीटिंग नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। इस तरह आम जिंदगी से आते तो रमजान में चले आए हम, है ना। अब उस पर हमारा कोई सोच फिक्र, तदब्बुर, गौर फिक्र ना रहा, कोई प्लानिंग नहीं रही, कोई मीटिंग नहीं हुई, और फिर पता चला कि उसी में झूठ झगड़ा शुरू रमजान ही के अंदर।
آپ پکڑتے نہیں روزہ ہم ہے، بچہ رو رہا ہے، سب کی پریشانی ہے الگ الگ، تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ رمضان ہم کیسے گزاریں گے؟ کیا انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ایک تو ہم روزہ رہیں، اور دیکھیں بھوک کی وجہ سے اکثر انسان کا مزاج چڑایا رہتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب انسان کو بھوک لگی رہتی ہے تو اس کا مزاج حاضر نہیں رہتا ہے، بڑی مشکل ترین کام ہے، یہ تو نفسیاتی چیز ہے کہ بھوک کی وجہ سے انسان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، تو جب صرف غصہ مردی کو نہ آ سکتا ہے، عورت کو بھی آ سکتا ہے، تو ہم کو تو عبادت بھی کرنی ہے نا، جہاں پر رمضان میں افطار سحر کی فکر ہے، عبادت کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کیسے ہم کریں، اور ہم کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، ایک گارجین صرف اپنے لیے نہیں کماتا ہے، اپنے بال بچوں اور پریوار کے لیے کماتا ہے، تو عبادت اپنے لیے کیسے کریں؟ سمجھا رہی ہے؟ عبادت بھی اس کو سب کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہماری بیوی کیسے تراویح پڑھ لے، وہ کیسے نماز پڑھ لے، وہ کیسے ذکر و اذکار کر لے، اس کو کیسے سہولت دی جائے، کیسے اس کو آرام دیا جائے، بچے کیسے ہمارے افطار سحر میں حاضر رہے اور اس کو آرام سے کر سکیں، یہ سب ایک پلاننگ سے ہوگا، جس کو ہم تیاری کہتے ہیں کہ رمضان کیسے گزارے، جس کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس طریقے سے ہم آ سکتے ہیں۔ اب سارے رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا علامہ ابن قیم کے بارے میں کہ وہ تمام چیزوں سے بالکل فری ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام تو کاروبار بند کر دیتے تھے ایک مہینہ، اور ہمارے کاروبار رمضان ہی میں ہوتا ہے، حیرت کی بات یہی ہے ہمارے یہاں کاروبار رمضان ہی میں ہوتا ہے، ابھی تو جتنے دکاندار ہیں، چاہے کپڑے کو چاہے چپل کو، سب کا مال اسٹاک میں آ کر رکھا ہوا ہے، وہ صرف چاند نکلنے کی دیر ہے۔ ایک وہ تھی صحابہ اکرام جو چاند کا انتظار عبادت کے لیے کرتے تھے، ایک ہم مسلمان چاند کا انتظار تجارت کے لیے کر رہے ہیں، فرق ہوا کہ نہیں دونوں میں؟ ہو نا فرق؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہی مہینہ کمانے کا ہے، ان کو یہ لگتا تھا یہی مہینہ عبادت کا ہے، بہترین مہینہ اللہ دے رہا ہمیں، جہاں تک رہا کاروبار یعنی رزق، وہ تو اللہ اس کا مالک ہے، وہ دینے والا ہے، ہم اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو اسٹاپ کر رہے ہیں یا اسٹاپ کر رہے ہیں یا تھوڑا سا چھوڑ دے رہے ہیں، تو اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ چاہتا تو کما لے گا، حالات اور بازار ایسے ہی ہیں، لیکن یہ اپنے کمائی سے زیادہ وہ میری عبادت پر دھیان دے رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، میرا معاشرہ بالکل آپ لوگ سے ہی ہے، آپ ہی لوگ کی طرح کوئی الگ نہیں ہے کہ دور دراز کے اور ہماری طرف الگ ماحول ہے، آپ کی طرف الگ ماحول ہے۔ آپ بازاروں کی حالت دیکھیے، دکاندار نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا، قضا پڑھنی پڑے، رمضان جیسے مہینے میں اس کو قضا پڑھنی پڑے، جماعت نہیں مل رہی اس کو، وہ بند ہی نہیں کر پائے گا دکان اپنی، وہ نہیں پڑھ پا رہا نماز، مسجد میں نہیں جا پا رہا، یعنی ایسا ہو جا رہا ہے کہ عام دنوں کی طرح رمضان میں بھی جمعہ ہی میں جا رہا ہے۔ رمضان جیسے مہینوں میں یہ تو ہو گیا آپ کی عبادت کا معاملہ، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار نہیں کر پا رہا ہے، اس کو ٹائم نہیں اس کے پاس، ایسا بھی کیا کمانا، ایسا بھی کیا کمانا؟ وہ حدیث یاد ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنی روزی کھائے بغیر مرے گا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور ایک چیز، اللہ نے ایک دن میں جتنا مقرر کیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ مان لیجیے کہ آج ہم لوگوں کے قسمت میں 5 روپیہ لکھا ہوگا کمانے کا، وہ ٹھیک اللہ ہم کو دے دے گا، وہ کوئی نہیں روک سکتا، اس کو 6 کوئی نہیں کر سکتا، 6.5 نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا مبارک مہینہ ہے، اور کیسے لوگوں کو دل گوارا کر لیتا ہے کہ ہم تجارت کی طرف فوکس کریں، اور مان لیجیے آپ کروڑوں روپے کما بھی لیے ایک مہینے کے اندر، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کروڑوں کی نیکیاں کما دی جو کل قبر میں کام آئے گی، اور پیسہ دنیا میں کمائے گی، پیسہ دنیا میں کمائے گا، اور نیکیاں کہاں کام آئے گی؟ قبر میں کام آئے گی۔ تو اسی لیے اسلاف اپنے قبر والے جو گھر ہے، جو ان کا پرماننٹ روم ہے، اس کی بڑی فکر کرتے تھے کہ اس روم کو کیسے سجایا جائے، کیسے سنبھالا جائے۔ تو یہ بھی ایک معنی غلط نہ نکالے کہ تجارت سے منع کیا جا رہا ہے یا حرام کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اتنا مبارک مہینہ، صحابہ جیسی ہستی جس میں تاجر ایک سے بڑھ کر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، ٹوٹل بند ایک مہینہ، کیوں؟ پیغمبر کی عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، افطار کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو نارمل کام کریں، ہم زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ ہم کیسے اس مہینے کو عبادت میں گزار سکیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں رمضان کی اہمیت کے تعلق سے کہ رمضان مبارک کی کیا اہمیت ہے۔ رمضان کی اہمیت میں کئی چیزیں ہیں کہ اس مہینے کو ہم لوگ کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آتا ہے کہ اس میں رمضان میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا،
जो लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत है, वो बय्यिनात मिनल हुदा, और ये वाज़ेह फर्क है हक और बातिल के दरमियान। कुरान वाज़ेह फर्क है, ये कुरान वल फुरकान फर्क करती है, क्या हक है और क्या बातिल है, यानी हिदायत क्या है और जलालत क्या है, ये कुरान हमें बतलाता है। तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कुरान को नाजिल किया। वो कुरान जिसकी तफसीर, जिसका तर्जुमा हमारा हर हफ्ते सुनते हैं, जिसने इंसान के दिलों को फेर दिया। इसी तरीके से इस महीने के अंदर बेशुमार अजर व सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन साम रमजाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमजान का रोजा ईमान और एहतिसाब के साथ, ये दो शर्त अल्लाह के रसूल ने लगाया, ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान को रोजा रखा तो उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह सगीरा, कबीरा नहीं, कबीरा गुनाह तौबा ही से माफ होगा, तमाम छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब एक हदीस और देखिए, जिसके रावी है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो बयान करते हैं कि इंसान का हर अमल उसके लिए है। एक इंसान जब कोई अमल करता है तो अपने लिए करता है। मान लीजिए हम नमाज पढ़े, किसके लिए पढ़ रहे हैं? आपके लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, और आप हमारे लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे हक में, हमारे खाते में नेकी आए, सिवाय रोजा के। सिवाय रोजा के, रोजा जो हम रख रहे हैं वो अपने लिए नहीं रख रहे हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंसान का हर अमल उसके लिए सिवाय रोजा के, इसलिए कि रोजा जो है मेरे लिए, यानी अल्लाह का रोजा मेरे लिए है। ये बंदा मेरे लिए भूखा प्यासा है, वो खा सकता है, पी सकता है, कोई देखने वाला नहीं। तन्हाई में चला गया, कमरे में चला गया, बत्ती बुझा दिया, अंदर से लॉक कर दिया, कौन देख रहा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और फिर मुआशरे में निकल जाएंगे, ऐसा लगे कि हम रोजेदार हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान का हर अमल उसके लिए सिवाय रोजा के। अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका अजर दूंगा। जाहिर सी बात है, रोजे का अजर अल्लाह ताला देने वाला है। इसी तरीके से रोजा सिफारिश भी करेगा क़यामत के दिन। क्यों हम रमजान का रोजा, किसकी अहमियत क्या है? रोजा कल बारगाह इलाही में हमारी मगफरत की सिफारिश करेगा कि अल्लाह ये बंदा अच्छा ही तो रोजा रखता था, अल्लाह बड़ी पाबंदी करता था, बड़ी अहमियत देता था रमजान के महीने को, बड़ी मुस्तैदी के साथ, दिल जमइया, दिल जोही के साथ इबादत और तिलावत वगैरह में, जिक्र अस्कार में लगा रहता था। ये क्या करेगा? ये रोजा जो है कल अल्लाह की बारगाह में हमारी शिफात करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदा की सिफारिश करें। दोनों, और दोनों एक ही महीने में है। रमजान कुरान का महीना है और रोजा तो है रमजान, रोजा रखने का महीना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोजा और कुरान कल क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदा को दिन में खाने और तमाम ख्वाहिशात पूरी करने से रोक दिया था, तमाम ख्वाहिशात पूरी करने से रोक दिया था। कुरान कहेगा कि अल्लाह, इसने रमजान के महीने में या आम दिनों में मेरे लिए अपने सारे काम को छोड़ दिया था और मेरी तिलावत किया करता था। रमजान का रोजा और कुरान दोनों अल्लाह के बारे में सिफारिश करेंगे, यानी ये गवाह बन जाएंगे। क्यों रमजान के रोजा रखते हैं? इसकी अहमियत क्या है? इसमें एक स्पेशल गेट है। इस महीने में एक स्पेशल दरवाजा है जिसको गेट बोलते हैं, उसका नाम क्या? रैयान, बाबुर रैयान। ये अल्लाह ताला ने, अब रमजान के रोजों की अहमियत का अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने इस रोजे के लिए स्पेशल एक गेट बना दिया और इस गेट से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया में हट्टे कट्टे और तवाना व तंदुरुस्त लोग रोजा नहीं रखते, कह करके ड्यूटी का चाप बहुत है, मेहनत वाला काम है, कल उनको कहा जाएगा तुम हटो पीछे हटो, तुम लोग पीछे हटो, रोजेदार सिर्फ जाओ अंदर, दरवाजा है, चलो रोजेदार चलो, आप चलिए पीछे हटिए। आप तो दुनिया बोलते थे ना कि बहुत काम है, बहुत मेहनत वाला, आप पीछे हटिए, चलिए आप लोग चले। स्पेशल गेट बाबुर रैयान रोजेदारों के लिए। क्या हम नहीं चाहेंगे कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे औलाद उस गेट से जाए, या हमारे पूर्व जो गुजर चुके हैं, बाप अबा अजदाद जो मुसलमान थे, मोमिन थे, वो भी दरवाजे से जन्नत में जाए। ये अहमियत है रमजान के रोजों की कि अल्लाह ताला ने स्पेशल जो है गेट बना दिया है। उसके बाद रमजान में एक मसला आता है तरावी का, उसी रमजान की, जिसके बारे में जिक्र हुआ क़यामुल लैल कहते हैं कि तरावी का हुक्म तब जानी जाए कि नफिल नमाज से, इसके पढ़ने पर सवाब है, ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझे हम ना पढ़ें। भाई रमजान का पूरा महीना इबादत वाला है, तो तरावी भी एक नमाज है, इबादत है, तो क्यों उसको छोड़ दें? हम उसको क्यों छोड़ दें? उसको भी पकड़ के रखे थोड़े ना। एक एक लम्हा, एक एक वक्त जो है अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश करनी है। तो तरावी में जो है हम लोग शिरकत करने की कोशिश करें। कुरान सुनना कोई गलत चीज नहीं है, तरावी में कुरान पढ़ी जाती है और कुरान सुने, दिल को अपना मसबूर करें, खुशी और आसानी, दिल को जो दिक्कत है, जो मुसीबत परेशान दिल है साल भर से,
वो कुरान के जरिए वो जो जंग लगा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। तरावी का जो मसला है कि हम तरावी पढ़ें, अब इसमें जो सवाल बात होगा उसका अभी मैं जवाब दे देता हूँ कि बहुत सारे मसाइल है कि 20 रकअत तरावी है कि 8 रकअत तरावी है, क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में जो सही हदीस आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 8 रकअत तरावी और 3 रकअत वित्र, उसी को क़यामुल लैल कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में दोनों की बात हो रही है, सिर्फ रमजान की बात नहीं हो रही। गैर रमजान में यानी आम दिनों में वो क्या है, क़यामुल लैल है। रमजान में तरावी की नमाज हो जा रही है। जो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो यही है कि आप रमजान और गैर रमजान में 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। चूंकि अभी ये सब मसले की बातें करने का मौका नहीं है। सवाल ये है कि हम लोग पढ़े लिखे, हम खुद स्टडी करें, मुताला करें और आप हकीकत अल्लाह को पहुंचा दें, क्या हकायक है, खुद से पढ़ें कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और एक बात याद रखिए कि शरीयत पे अगर अमल करना, इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को ना देखें। मुसलमान तो चोरी भी कर रहा है तो आप बोलेंगे कि इस्लाम में चोरी करना है। मुसलमान शराब भी पी रहा है तो आप कहेंगे कि इस्लाम में शराब पीना हलाल है। मुसलमान सूद भी खा रहा है तो आप कहेंगे कि इस्लाम में सूद खाना है ना। तो मुसलमान को ना देखिए। अगर इस्लाम को समझना है तो कुरान और हदीस को देखिए कि अल्लाह की किताब में क्या है और नबी के फरमान में क्या है। उसी तरीके से रमजान के मसाइल में एक मसला आता है आपको इत्तिकाफ का। इत्तिकाफ का भी मसला है। इत्तिकाफ यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ करते थे। और बास हदीस के अंदर है, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक मसला है इत्तिकाफ का, जो कि आखिरी अशरे में इत्तिकाफ का मसला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में रमजान के इत्तिकाफ करते थे और आपसे 20 दिन का भी इत्तिकाफ साबित है। सुन ले, हैरानी हो जानकर आपको, गैर रमजान में भी आपने इत्तिकाफ किया है। रमजान तो छोड़ दो, आपने गैर रमजान में भी इत्तिकाफ किया है। अब चूंकि आखिरी अशरे की बात है तो एक चीज हमारे मुआशरे में बहुत गर्दिश करती है कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा बरकत का, कि ये इस तरह से तकसीम किया गया है, जबकि ये हदीस सही नहीं है। ये हदीस सही नहीं है। अब मान लीजिए कि पहला अशरा जो है रहमत का है, दूसरा अशरा जो है बरकत का है और तीसरा मग़फ़िरत का है। अब कोई पहला जो कह रहा है कि अल्लाह बख्श दे, तो अल्लाह कहेगा बंदा तो एडवांस हो गया, तो मग़फ़िरत तो तुमको थर्ड में है और तुम पहली मांग रहा है। समझ में आ रही है? अल्लाह कहेगा ना मग़फ़िरत तो तुमको बाद में मिलेगा 20 के बाद, और तुम एडवांस में अभी मांग रहे हो तो इंतजार करो, 20 के बाद ले लेना, वो तो मग़फ़िरत ही का महीना है। अब मग़फ़िरत में आ गया, घर में कोई परेशानी आ गई, अल्लाह तू रहमत नाज़िल कर, अल्लाह के घर में तू तो पीछे चला गया, रहमत जा चुकी है, अब दरवाजा बंद। खैर हंसने वाली बात नहीं है, अल्लाह माफ करे। तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। पूरा महीना रहमत का है, बरकत का है, मग़फ़िरत का है। पूरा महीना, पूरे महीने के अंदर हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, रहमत तलब करें, या जो हमारी जरूरत या परेशानियां हैं तलब करें। एक चीज और, जैसी रमजान का चांद नजर आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, और जो सर्कस जिन्नात वगैरह हैं उनको कैद कर लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और ये तिरमिज़ी इब्न माजा की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो शैतानों और सर्कस जिनों को जकड़ दिया जाता है। पहली रात से चांद नजर आए, पहली रात होगी, तभी हम तरावी पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ अरबी में पहले रात आता है, जैसा कि मगरिब के बाद डेट चेंज हो गया तो पहले रात पा लिया हमने, उसके बाद सुबह दिन बाद भी पाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो शैतानों और सर्कस जिनों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई भी दरवाजा खुला नहीं रहता, कोई भी, टोटल बंद, एक भी दरवाजा नहीं खुला रहता। यानी जितने दरवाजे जहन्नम के 8 के 7 दरवाजे सब बंद, कोई दरवाजा नहीं खुला रहता। आगे आप ने कहा और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका कोई भी दरवाजा छोड़ा नहीं जाता, सब दरवाजे खोल दिया है। तो एक स्पेशल दरवाजा रैयान, लेकिन सारे दरवाजों को खोल दिया जाता है जन्नत के। उसके बाद आप ने फरमाया, और एक ऐलान करने वाला यानी नादी मुनादी पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़ और ऐ शर के तलबगार पीछे रुक जाओ। सोचिए, जैसी चांद नजर आया, जहन्नम के दरवाजे टोटल बंद, जन्नत के टोटल खोल दिए जाते हैं, सर्कस जिन्नातों को जकड़ और कैद कर दिया जाता है,
اور पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़ो और इस शर के तलबगार अपने आप को रोक दो। एक दूसरी हदीस में ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमजान के हर रात को, पूरे महीने में हर रात को लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है ना। अब आप सोचें कि हमारे अपने जो इंतकाल कर चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके पास अब अमल करने का वक्त नहीं रहा, हमारे पास है, अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। अपने लिए तो है ही, अब जो हमारे अपने दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो जो कुबूलियत के दुआ के जो औकात है, जैसे इफ्तार से पहले, इफ्तार के वक्त जो दुआ आप मांगेंगे वो दुआ रद्द नहीं होगी, वो दुआ रद्द अल्लाह नहीं करेगा, बिल्कुल कबूल होना ही होना है। तो हम इफ्तार के वक्त जहां अपने दुआ करें, अपने अहबाब के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें कि जो हमारे मरहूमीन है, इंतकाल कर चुके, अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल कर। हर रात अल्लाह जन्नत से निकालता है और जन्नत में दाखिल कर देता है। गुनहगारों की बात हो रही है, कितना बेहतरीन मौसम आ रहा है, अपने लिए भी, अपने अपनों के लिए भी। तो इफ्तार कम से कम मान लीजिए कि 5 बजे इफ्तार है, तो हम कोशिश करिए भी। देखिए इसलिए मैंने कहा कि तैयारी करें, रमजान कैसे करना है, तैयारी में सारी मीटिंग होती है। घर वाली से कहना है, जो घर की खवातीन है, कि आप मिसाल के तौर पे 5 बजे इफ्तार है, 4:45 तक रेडी, ना सिर्फ इफ्तार बल्कि आप लोग भी बावजू होकर दस्तरखान पर बैठ जाओ, दुआ करनी है। क्या करनी है? दुआ। हम लोग यहाँ का अजान हो रही, पक रहा है, छना रहा है, अजान हो गई, अभी पक रहा है, तला रहा है, छना रहा है, चल रहा है, अभी तक कढ़ाई में सब पकी रहा है। ये बहुत गलत बात है। एक बेहतरीन वक्त जो हमने ज़ाया कर दी, जिसमें दुआ कबूल होती है, और अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त भी बहुत से लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है। उसी वक्त तो जो हमारे अपने हैं, किसी के वालिद के इंतकाल हो गया, किसी की वालदा का, किसी का मामा का, किसी का, जो भी अपने मिलने वाले हैं, पूरे उनके लिए हम दुआ करें। यही तो हमारी आपकी ईमान की पहचान है कि एक मुसलमान सेल्फिश नहीं होता, खुद के बारे में नहीं सोचता। उखरजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो। तो ये भी एक रूटीन में रखे कि जितना बजे इफ्तार है उससे 15 मिनट पहले हम दस्तरखान पर बैठ जाए और कौम के लिए दुआ करें। जहां मुसलमान परेशान हाल है पूरी दुनिया में, चाहे अपने मुल्क के हो या बाहर के मुल्क हो, सबके लिए दुआ करें। वो तो कबूलियत की घड़ी है। बाद में आप लोग मिलते हैं और लोग आते इमाम साहब के पास आम दिनों में, देखिए ना हमारा काम बिगड़ के हो नहीं रहा, फ्यूचर के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुस्तकबिल को तू जानने वाला है, मुझे नहीं मालूम, तू अता करने वाला है, हमारे मुस्तकबिल को संवार दे, हमें नेकियों की तौफीक दे। सारी चीजें आप अपनी दुआओं के अंदर मांगे। तो ये बात याद रखें कि रमजान के अंदर जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं, उसमें अपने मरहूमिन के लिए जरूर जरूर हम दुआ करें। अब आते हैं सेहरी का मसला। सेहरी खाना ये बाइस बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तसाहुरु, सेहरी खाओ, फइन्ना फिस्सुहुरि बरका, बेशक सेहरी में बरकत है। इसलिए भी सेहरी खाओ कि यहूद सेहरी नहीं खाते, यहूदी जो रोजा रखते हैं वो सेहरी नहीं खाते, तो उनकी मुखालिफत भी करनी है। तो सेहरी में बरकत है। अब कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में, हमारे रिस्क में, हमारी सेहत में, हमारी दौलत में, हमारे खाने पीने बरकत, कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। तो घर में जो बरकत आने का एक जरिया है रमजान, उसमें सेहरी खाना है कि हम सेहरी में उठें और सेहरी खाएं। उसमें एक छोटा सा मतलब, बहुत सारे सेहरी के मसाले मसला मैं ऐड कर दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलार्म भी फेल हो जाता है। नींद है इंसान की, गफलत है, अलार्म बज के बंद हो जाता है, हम उठ नहीं पाते हैं। जब उठते हैं तो आजान हो रही है, उसमें अब ऐसी सूरत में क्या करें? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी से घूंट पानी पीकर रेडी हो जाते हैं। तो उसमें एक बात याद रखें कि आराम से खाना लेके बैठे, अजान खत्म हो जाए खाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है, खत्म हो जाए अजान, आप खाइए, लेकिन आराम से नहीं, जल्दी जल्दी। मान लीजिए 4 रोटी लेकर बैठ गए, 2 रोटी लेकर बैठ गए, अजान खत्म, आप अभी उठे हैं, आप खाइए इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही है? इत्मीनान से खाना को खत्म कीजिए। ये सही और सुनन और सुन्नत तरीका है। कब, किस परिस्थिति में? जब हम लेट से उठे हैं, वक्त नहीं हमारे पास, या 2 मिनट पहले उठे हैं, अब 2 मिनट जल्दी ना खाएं, जो खाना है उसको फौरन खत्म करें। ये ना सोचे कि अजान हो गया, आधा ही रोटी खाए जल्दबाजी में, इस तरह कुछ नहीं। लेकिन खाना आराम से नहीं खाना, जल्दी खाना है, पूरा खत्म करना है। अब एक मसला आता है इफ्तार का। जब दुआ सेहरी का दुआ, पहले इफ्तार का तो दुआ बताते हैं, अब आ गया इफ्तार का। इफ्तार का जो मसला है कि इफ्तार कैसे करें। अब देखिए हमारे मुआशरे में बहुत तरह के मसाइल हैं। अगर हम चार्ट को देखें तो फला मस्जिद का सेहरी का टाइम ये है, इफ्तार का टाइम ये है ना, फला मस्जिद का ये है ये। अब एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी, उस समय वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि हम किधर जाएं। वो भी मस्जिद है, उधर भी इमाम साहब, ये भी मस्जिद, इधर भी इमाम साहब है, सारी चीजें एक है, लेकिन हम सही गलत का फैसला कैसे करें, है ना। आप देखिए
शहर का जो वक्त है, आज अभी आप लोग नेट पे मारे कि उल्टी में शहरी का वक्त कितना है, अभी मारे आप लोग नेट पे कि फजर का वक्त कितना है, तो आपको पता चलेगा कि आज का जो वक्त है फजर का वो 4:55 या 54 पे है। और साल भर हमारी मस्जिद में ऐसी होता है, मान लीजिए किसी को नफिल रोजा रखना है बीच महीने में, शाबान चला गया, रमजान आएगा, फिर शव्वाल आएगा, है ना। अब मान लीजिए कि मुहर्रम के महीने में नफिल रोजा रखना है, सोमवार और जुमरात, तो आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि शहरी का वक्त खत्म होगा? अजान से पता चलेगा, है ना। तो आज अगर आप नेट पे मारेंगे तो आपको शहरी का टाइम आएगा 4:55 या 54 पे आएगा, फजर का टाइम। अब मार के देख ले एक आदमी कोई कि आज का टाइम क्या है जहां हम लोग रहते हैं, है ना। यही टाइमिंग साल भर चलता है, ये एक दिन की बात नहीं है। अगर कोई नफिल रोजा रखना चाहे तो आप जाइए ना, उसी वक्त भी आप नेट पे देखेंगे तो वही टाइम बताएगा आपको, 3 बजे कुछ होगा, जो भी होगा एक्यूरेट आपको नेट पे डेट बता देगा। उसी तरीके से गुरूब आफ्ताब मारिए, क्या उसको सनसेट बोलते हैं ना, सनसेट का टाइम मारिए कि कितने बजे सूरज डूब रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इफ्तार में जल्दी करो, बेशक वो कौम भलाई में रहती है जो इफ्तार में जल्दी करती है। एहतियातन 2 मिनट छोड़ना, 3 मिनट छोड़ना, ऐसा कुछ नबी का तरीका नहीं रहा है, नहीं रहा तरीका। एहतियात करना 2 घंटा कर लीजिए, 2 घंटा के लिए पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा, डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इफ्तार में जल्दी करो, वो कौम हमेशा भलाई में रहेगी जो इफ्तार में जल्दी करेगी। तो आज का देखिए सनसेट टाइम कितना है ना। देखिए यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है, और ना किसी को जलील करना, अल्लाह माफ करे। जो भी उलमा होते हैं वो काबिल इज्जत होते हैं, और वो इज्जत के लायक उनकी इज्जत होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, चाहे वो जिस भी मसलक से बिलोंग करते हो, सबकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि एक आलिम दीन है, वो कुरान पढ़ाने वाला है, हदीस पढ़ाने वाला है। लेकिन आप देखें कि आज अगर मान अभी फजर की अजान कितने बजे होती है यहाँ पे? 5 बजे ना। आप रमजान में देखेंगे अचानक टाइम क्रॉस कर जाता है, क्यों? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मौजी साहब आप अजान दे रहे हैं तो रमजान में अचानक आधा घंटा कैसे गया? और एक जगह हम वही देख रहे हैं जो नेट पे बता रहे हैं, जो टाइमिंग बता रहे हैं, गूगल सर्च करके बता रहे हैं, जो मशीन बता रही है ना, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फायदा उठा रहे हैं। तो आज 5 बजे दे रहे हैं, अभी एक हफ्ता बाद रमजान आएगा तो अब 4:45 में कैसे देखेंगे? ये तो सवाल होना चाहिए। और जिनके हो रहा बिल्कुल उसी चल रहा है, उनका साल भर उसी चल रहा है। अब जब भी चेक कर सकते हो वही बताएगा आपको, आज चेक करेंगे तो वही बताएगा। तो हम पढ़े लिखे कौम है ना, हमको तो पूछना चाहिए, लड़ने के लिए नहीं, झगड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। इस्लाम मकसद है ना, कि अचानक टाइम कैसे छलांग मार दिया ना, अब फिर जैसे रमजान खत्म हो फिर टाइम चल जाएगा। ये तो सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मालूम होना चाहिए कि शरीयत का कानून क्या है। तो इफ्तार में जल्दी का मामला जैसे वक्त हो गया, अजान, और पहले जमाने में लाल बत्ती तरफ लाल बत्ती पर चलता था, स्टॉप करने के हम लोग यहाँ चलता था। तो अब चूंकि अब उस का जमाना नहीं रहा, मोबाइल वगैरह सब आ गया है, तो मोबाइल ही खुद बत्ती के काम कर रहा है, कंप्यूटर का काम कर रहा है। अब मान लीजिए किसी के अजान की आवाज नहीं जाती, बहुत से मुसलमान ऐसे इलाकों में रहते हैं दूर दूर तक मस्जिद नहीं, अब वो क्या करें? वो कैसे रोजा खोले? वही है नेट। आप देखिए कि जहां पे आप मौजूद लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा और आपको सनसेट टाइम बता देगा। टाइम हो गया, इफ्तार कर लीजिए। इस्लाम अजान का मोहताज नहीं है, इफ्तार जो है कि अजान पे ही इफ्तार करना है, बात समझ रही है ना। आपका टाइम हो गया, आप इफ्तार कर लीजिए। जो मस्जिद हजरात भी होते हैं वो भी खजूर खा कर ही अजान देते हैं, बात समझ रही है। लोग डरे रहते हैं कि जा टाइम हो गया, अभी अजान हो गई, तुम खा लीजिए और जो गया तुम्हारा। अरे भाई, जो मस्जिद साहब नाम दे रहे वो खजूर खा के दे रहे हैं, खजूर खाए, पानी पिए और अजान दे रहे। चले क्यों नहीं खाए? क्योंकि वो भूखे थोड़े ना अजान देंगे। आप आराम से पानी पी लीजिए और जाइए अजान दे दीजिए। ये सेहर इफ्तार के जो मसाइल है ना। अब आते हैं दुआ की तरफ। सेहरी में जो दुआ आमतौर पर जो कार्ड वगैरह छपता है तो उसमें एक दुआ लिखा रहता है कि बिसौमी गदिन नवीतु अनसुमा रमजान। हाँ, अब देखिए आप लोग अरबी से रूबरू नहीं है कि हम उसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर देते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहली बात, इस सेहर की कोई दुआ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, ठीक है। कोई दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी है कि ये दुआ है। वहां क्या है? नियत है, आप उठे, आपकी नियत सेहरी खाने की, उसी पर आपका सवाब है। अब जो दुआ लिखी जाती है वो सही हदीस नहीं है। अब उसका तर्जुमा जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ सही नहीं है। नबी तू बेगदीन अन असुमा, गद कहते गैन और दाल गदीन। गदीन को बोलते हैं टुमोरो। गदीन मतलब क्या होता है? आने वाला, आइंदा, कल। अभी मान लीजिए आज कौन दिन है? आज है आपको सैटरडे, शनिचर है ना। 12 बजे के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? रात को इतवार हो जाएगा। अब कल हमको रोजा रखना है, ठीक है। हम इतवार को सेहरी में उठे
اور دعا پڑھ رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یعنی سمار کی. سحری کب کھا رہے ہیں؟ سوچیے، خود ہی سوچیے کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ کیجیے آپ، عربی نہیں ہو تو گوگل ٹرانسلیٹ پہ جائیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. قدیم مت ہوتا ہے ٹمورو، عربی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو آج ہی ہم کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ صبح 4 بجے بھور بھی اٹھ رہے ہیں تو سمجھ چلیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آج روزہ رکھ رہے تو کل کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنا ہوگا، لوجک ہے سمجھنے کے لیے. آپ سمجھیے کہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہی غلط ہے. روزہ آج رکھ رہے ہیں، نیت کل کی کریں، ٹمورو کا پرس یعنی اتوار کو سحری کا سماج کا نیت کر لیں تو صحت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. آتے افطار کی طرف. افطار میں جو دعا ہیں اللہم لکا صمت بک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی ثابت نہیں، صحیح نہیں. اس میں بہت کلام ہے اور صحیح کے درجے تک بلکہ موضوع ہے نا. اس میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور طریقہ ہے افطار کا، افطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو بسم اللہ سے، ہے نا. کھانا جب بھی کھائے تو کیا کرے؟ بسم اللہ کرے. تو یہ کھانا ہے، آپ بسم اللہ کرے. آپ کا طریقہ تھا پہلے کھجور کھاتے تھے، کھجور نہیں ہوتا تھا آپ پانی سے روزہ کرتے تھے. تو کھجور الحمدللہ آج کل تو وسائل موجود ہیں، بہت سے گھرانہ غریب ہیں. ہم لوگ اپنی طرف سب کو نہ سوچے، بہت سا ایسا گھرانہ ہے جہاں کھجور بھی نہیں ملتا ہے. تو اگر کھجور نہیں تو پانی سے افطار کریں، یا آپ سفر میں ہیں افطار کا وقت ہو گیا، بوتل ہے بیگ میں، تاکہ پانی پینے کا ٹائم ہو گیا آپ کا، تو طریقہ ہے کھجور سے. کھجور نہ ملے تو پانی سے. آپ افطار کرتے تھے پہلے بسم اللہ کہتے تھے. افطار کرنے کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے جو ثابت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهبت ظمأ، بھوک جو ہے ختم ہو گئی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یعنی جو روزہ ہم رکھے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کے بعد پڑھتے تھے. بلکہ جو دعاؤں کا تذکرہ ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے رمضان میں اعتکاف ہو گیا نا، صحت افطار، اور کیا بولے تھے آپ؟ اس کی اہمیت کے گناہ. ہاں، اب آتے ہیں لاسٹ میں جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 183 183. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ روزہ فرض کرنے کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ روزہ کیوں فرض ہوا. روزہ اس لیے فرض ہوا کہ تاکہ ہمارے اندر جو بے صبری وہ ختم ہو جائے. انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ خلق الانسان حلوا، انسان جلدباز پیدا کیا گیا. ہم لوگ چاہتے ہیں فوراً کوئی ہو جائے، کچھ پانا چاہتے ہیں، بڑا نہیں بنا آج ہی بن جائے، کل ہی بن جائے، محنت نہیں کرنا چاہتے.